بیٹی بیمار ہے سارا گھر بیمار لگتا ہے، دن میں 2 ڈاکٹر 3 ڈاکٹر بھی چینج ہو جاتے ہیں، بدلتے ہیں نا. بیٹی بیمار ہے سارا گھر، اور اس کا جو آپ یہ تھوڑی سی بھی مایوس ہو تو چہرے سے پتہ چلتا ہے بیٹی مایوس ہے، کیا بات ہے. لیکن جب یہ بہو بیمار ہونا تب کیا بولتے ہیں؟ تب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ بھی بیمار ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، یہ بھی ہماری بیٹی جیسی ہے، اس کو بھی ویسے ہی خیال رکھنا ہے جیسے ہم نے اپنی بیٹی کا خیال ہے کہ نہیں ہے. وہ چیزیں ہمیں یاد نہیں رہتی ہیں. اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا اتَّقُوا اللَّهَ، مجھے ڈرنا. یہ جو آپ معاملہ کر رہے ہو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جب مرو گے تو. اور یہ وہ معاملہ ہے، یہ حقوق کا معاملہ ہے. یہ ہمارا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری قدرت میں نہیں، آپ یہ میں نے چھوڑ دیا ہے. کس پہ؟ بندے پہ. جس کا اپنی حقوق ضائع کیا ہے وہ معاف کرے گا تو معاف کرو گا، وہ نہیں معاف کرے گا میں نہیں معاف کروں گا. ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین یا رب العالمین. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی،
تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات, پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات, تو جھکا جب گیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے حق اور بیش بہا درود انگنت درود و سلام کائنات کے رہبر اعظم مرشد اعظم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و ثنا اور درود سلام کے بعد ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں, ہم ایک عظیم مجلس میں اس وقت اپنے آپ کو پا رہے ہیں جو اسلامی نقطہ نظر کے لحاظ سے بہت بڑی مجلس ہے, بہت عظیم مجلس ہے. یہ وہ مجلس ہے جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف کی ہے, یہ بیان کر کے کہ النکاح من سنتی, یہ جو نکاح ہے میری سنت ہے. یعنی یہ وہ جیتی جاگتی ایک وہ چیز ہے جس کو اپنی طرف نسبت کی ہے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ. النکاح من سنتی, یہ جو نکاح ہے یہ میری سنت ہے. اور اس مجلس کا ایک اور اہم چیز بیان کیا ہے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے, اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین. جب یہ لڑکا اور لڑکی نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں, یعنی جب ان کا ایجاب قبول ہو جاتا ہے, ان کو پوچھا جاتا ہے آپ کو قبول ہے اور آپ کو قبول ہے, جب یہ ایجاب قبول ہو جاتا ہے تو یہ آدھا دین مکمل کر لیتے ہیں. کس سے؟ اس نکاح سے ان کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. یعنی یہ اتنی عظیم مجلس ہے. لیکن ہم جب اپنے ملک کی بات کریں, یہاں سب سے جو کم تر مجلس ہے یہی مجلس جانی جاتے ہیں. مجھے معاف کرنا اگر کسی کو برا بھی لگے, ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے آج ناچ گانا, ہمیں پسند ہے وہ چیزیں جس کو نہ اسلام نے اجازت دی ہے نہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت, ہمیں پسند ہے وہی چیزیں. لیکن یہ جو مجلس ہے اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم اس کے لیے وقت نکالتے ہی نہیں ہیں. یہ ایسے ہی ہمارا وقت اللہ بچے ضائع نہیں ہو جاتا اس مجلس میں. یہ جو مجلس ہیں, اس مجلس میں جو نکاح پڑھائے جاتے ہیں, جو آیات بینات پڑھے جاتے ہیں, یہ اصول بیان کیے ہوئے ہیں لڑکی کے لیے بھی اور لڑکے کے لیے بھی. جو آئندہ آپ کی ازدواجی زندگی آ رہی ہے, آپ ان اصولوں پہ گزاریے. اگر آپ نے ان اصولوں پہ گزارے تو آپ کی جو آنے والی زندگی خوشحال رہے گی, آپ کی ازدواجی زندگی کامیاب رہے گی. آپ اب کسی بھی مارکیٹ میں جائیے, ہندوستان کے یا کسی بھی ملک کے مارکیٹ میں جائیں, آپ کوئی بھی الیکٹرانک ڈیوائس خریدیے, آپ اس الیکٹرانک ڈیوائس میں ایک مینول پائیں گے, ایک کتابچہ پائیں گے چھوٹی سی. ہر کوئی جو بھی آپ الیکٹرانک ڈیوائس لائیں گے, پاتے ہیں کہ نہیں پاتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے وہ, کس لیے ہوتا ہے؟ یہ جو آپ نے ڈیوائس لائے ہیں, جو آپ نے یہ چیز لائی ہے, کوئی بھی ہو, یہ کیسی چلانی ہے. آپ فائدے کے بجائے نقصان نہ کر پائے, آپ کو یہ کتاب پڑھنی ہے اور اس کے بعد استعمال کرنی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو پڑھتے ہیں نا, نکاح آج پڑھتے ہیں, اس پہ جو آیات بینات لکھے ہیں, یہ ایک اصول زندگی کے ہیں, سنہرے اصول. اگر ان پہ ہم نے زندگی گزاری, لڑکے نے لڑکی نے, تو آئندہ جو زندگی آنے والی ہے وہ کامیاب ہو جائیں گی. لیکن ہم یہ نہ سننے کے لیے تیار ہیں نہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں. اصول کیا بیان کیے جا رہے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک بیان کرتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, ہم ایمان والے ہیں اس لیے نکاح پڑھتے ہیں. یا اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو, میں ان کو بھی بات سنانا چاہتا ہوں. ان کے یہاں ہوتا ہے وہ آگ جلاتے ہیں اور آگ کے ارد گرد 7 چکر لگاتے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے؟ اور تقریباً مجھے لگتا ہے 5-6 گھنٹے لگتے ہیں اس عمل میں. وہ جو منڈپ ونڈپ باقی سب جو کرتے ہیں, تقریباً 5-6 گھنٹے اسی میں ہو جاتے ہیں. ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ کبھی ان کو بولا کسی نے کہ 5 ہی لگاؤ, چکر 7 مت لگاؤ, ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. وہ جو اپنے مذہب کے حساب سے جو بھی ہے وہ پورا کر لیتے ہیں, ایک بھی چیز وہ چھوٹنی نہیں چاہیے. ہمارے ہاں اگر بولیں گے ایک ہی آیت پڑھیں گے, کوئی بات نہیں, ہو جانا چاہیے, بس ایجاب قبول کر لے, باقی پرابلم. ہم نے ہر جگہ پہ اپنے دین پہ کمپرومائز کیا ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کب کا بیان کیا تھا, گنوا دی جو اسلاف سے میراث پائی تھی,
गंवा दी जो असलाब से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पे आसमान ने हमको दे मारा। आज क्यों आप अपना ये जो माथा ये क्यों ऐसे पीट रहे हो? आज क्यों अपने आप को ये बता रहे हैं कि हम दुनिया में कहीं हमारा मुकाम ही नहीं रहा? हम जमीन के साथ इस वक्त हैं, पूरी दुनिया में हमारा कोई सुनने वाला है? कोई हमारा मुकाम इस वक्त बहुत ज्यादा, हम पूरे पिसे हुए हैं मुसलमान आलमी, इस्लामी आलमी दुनिया में। वजह क्या है? हमने अपनी विरासत को वो मुकाम नहीं दिया जो हमें देना। हमने अपने घरों से इस्लाम को निकाल दिया है, छुट्टी की इस्लाम की। न कुरान है हमारे घरों में, न अहादीस है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने तब कहा था, गंवा दी जो असलाब से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पे आसमान ने हमको दे मारा। तुझे तेरे आबा से कोई निस्बत हो नहीं सकती, तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सय्यार। आपने नींद डाले हैं, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। ये जो पढ़ा जा रहा है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वालों अल्लाह से डरो। डरना किस बात पे है? और साथ ही में यह भी बताया जा रहा है, वला तुमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इस बात पे किसी को एतराज नहीं है दुनिया में, चाहे अथिस्ट हो, चाहे हिंदुइज्म में हो, चाहे जीव हो, चाहे ईसाई हो, इस पे किसी को भी एतराज नहीं है। मरना तो इस पे कोई जुटलाता है, कोई इसका इनकार करता है? मरने पे सभी इत्फाक करते हैं, मरना तो। बात इस पे है कि फिर जवाब देना है, हिसाब देना है कि नहीं दे, वो हमको भी अब शक होने लगा है। अगर हमको इस पे यकीन हो तो हम ये चीजें नहीं करते जो आज हम देख रहे हैं। इस्लाम के नाम पे क्या क्या हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि हमें इस पे यकीन ही नहीं कि हमें जवाब भी, हमें कहीं पे जवाब तलब है, हमें कहीं पे जाना है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 100 साल के बाद भी जाना तो है ना कि नहीं? जाना है कि नहीं जाना है? मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? इसका हमें तो जाना है ना एक दिन। जान दी हुई, मिर्जा गालिब कहते हैं, जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा न, हमें ये चीजें सिखाई गई थी लेकिन हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। सुबहानका मा ज़करनाका हक़्क़ ज़िक्रिका, सुबहानका मा शकरनाका हक़्क़ शुक्रिका, सुबहानका मा अरफ़नाका हक़्क़ मअरिफ़तिका। ऐ अल्लाह, जो मुझे आपको पहचानने का हक था मैंने ऐसा पहचाना नहीं आपको। जो मुझे इबादत करने का हक था मैंने ऐसे इबादत नहीं की। जो मुझे जिक्र करने का, आपको याद करने का हक था मैंने ऐसे याद नहीं किया। वही मिर्जा गालिब कह रहे, जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। बहरहाल अल्लाह पूछ रहा है हमसे, इत्तकुल्लाह, अब डरिए अल्लाह से, जितना हक है उसको डरने का। और मरना नहीं, लेकिन जब मरोगे तो मुसलमान मरना। ये चेहरा दिखाने के काबिल हो, ये चेहरा दिखाने के काबिल हो उसके दरबार में। जब आप अपने अमाल देख रहे, अब सभी गौर करना खुदा के लिए। आप इतने दूर से आए, मुझे मौका मिला आपके सामने, मैं ये फख्र जानता हूँ, गनीमत जानता हूँ कि मुझे बोलने का मौका मिला है, कहीं पे बात पहुंचेगी। अल्लाह हमें, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, अद्दुनिया उस्सिजुनुल मोमिन, मोमिन के लिए जो दुनिया है ये कैद खाना है। क्या है? कैद खाना। किसके लिए? मोमिन के लिए। कैद खाना क्या होता है? अल्लाह बचाए अब सबको कैद खाने से, हमें भी बचाए कैद खाने से। कैद खाने में एक ही काम होता है इस बंदे का, ये सिर्फ वो दरवाजा, पंजरे का दरवाजा देख रहा होता है ऐसे, ये कब खुलेगा मैं भागूंगा। हमारी हालत है किसी की इस तरह आज? मेरी है। हमारी हालत है कैद खाने की इस दुनिया में। हम है कैदी जैसी जिंदगी हमारी है दुनिया में। वह जन्नतुल काफिर, काफिर के लिए क्या है? हमारे लिए तो वैसी ही जन्नत है। हम तो वैसे ही बैठे हैं ना जन्नत की तरह। तो हमारा ईमान कहां पे है? हम किस हाल में जाएंगे इस दुनिया में? अगर यही हालत हमारी ईमान की रही, इसी पे खात्मा हुआ, तो हमारा हाल क्या होगा? हम क्या जवाब देंगे? हमें पूछा जाएगा ना मा दीनु का, हमें पूछा जाएगा ना मन रब्बू का, हमें पूछा जाएगा ना मन नबीयू का। कौन सा तरीका इख्तियार किया आपने जिंदगी में? किसके तरीके पे शादी की? किसके तरीके पे ताजियत की? किसके तरीके पे खुशी मनाई? किसके तरीके पे गम मनाए? किसके तरीके पे? हमने आपको नहीं दिया था वहदैनाहु नजदैन फलहमहा फुजूरहा व तकवाहा।
मैंने फजूर की वद भी वाजिया की है और तकवा का रास्ता भी वाजिया किया है। ये सब वाजिया है, अब आपकी है। आपको अल्लाह ने क्या दिया है? ये जो अक्ल सलीम है ये दी है। आपको अब चूज करना है, मुझे आग में जाना है कि मुझे जन्नत में जाना है। जब आपको दुनियावी तरीकों में ये अपना फायदा और नुकसान समझ में आता है, और गुनाह और सवाब क्यों नहीं समझ में आता है? फायदा तो नुकसान हम समझते हैं ना अच्छे से। अगर किसी को बोलेंगे आज आप कश्मीर में धान की खेती लगाओ, लगाएगा? बोलेगा मौलवी साहब आपके दिमाग ठीक नहीं है, इसमें इस मौसम में कहां लगेगा? ये जब ये फायदा और नुकसान हमको समझ में आता है तो गुनाह और सवाब क्यों नहीं समझ में आता है? ये तो वाजिया है, सब कुछ तो वाजिया कर चुके हैं हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि। या आप शुबहात में हो, शुकूक में हो कि उन्होंने, अल्लाह बचाए नऊज़ु बिल्लाह, उन्होंने वाजिया नहीं किया है, उन्होंने वाजिया किया है वला तुमूतुन्ना इल्ला व अंतुम। जब मरोगे तो किस पे मरना? ईमान पे मरना, ईमान पे खात्मा होना चाहिए। बहरहाल ये डरना किस बात के लिए है? जो आप यहां से बच्चे ले जा रहे हो ये बहुत दूर हैं, आज दूर नहीं लेकिन हैं। हम एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी बेटी भेजते हैं ना, तो हम बोलते हैं बहुत दूर हो गया। एक श्रीनगर, पुलवामा से श्रीनगर करते हैं ना निकाह, यहाँ पे हम बोलते हैं बहुत दूर हो गया। फिर हम उस जो बेटे वाला होते हैं उनको बोलते हैं कि अब इसकी कदर करना, उसको देखना, हम दूर है। अब हम भेज रहे हैं लखनऊ अपनी बेटी को, अपनी बहन को किधर भेज? लखनऊ भेज रहे हैं। लेकिन अल्लाह बोल रहा है रिश्तों के दो किस्म होते हैं। जो रिश्ते होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होती है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में बोलने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली एक फितरत है, दर्द होता है। बेटी बीमार है, सारा घर बीमार लगता है। दिन में 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर भी चेंज हो जाते हैं, बदलते हैं ना। बेटी बीमार है, सारा घर। और इसका जो आप ये थोड़ी सी भी मायूस हो तो चेहरे से पता चलता है बेटी मायूस है, क्या बात है। लेकिन जब ये बहू बीमार हो ना, तब क्या बोलते हैं? तब ये समझ में नहीं आता है कि ये भी बीमार है, इसकी भी जरूरत है, ये भी हमारी बेटी जैसी है, इसको भी वैसे ही ख्याल रखना है जैसे हमने अपनी बेटी का ख्याल है कि नहीं है। वो चीजें हमें याद नहीं रहती है। इसके बारे में अल्लाह कहते हैं वला तुमूतुन्ना इल्ला इत्तकुल्लाह, मुझे डरना। ये जो आप मामला कर रहे हो इसके बारे में पूछा जाएगा जब मरोगे तो। और ये वो मामला है, ये हुकूक का मामला है। ये हमारा जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि इस मामले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मेरी कुदरत में नहीं, आप ये मैंने छोड़ दिया है। किस पे? बंदे पे। जिसका आपने हुकूक ज़ाया किया है वो माफ करेगा तो माफ करूंगा, वो नहीं माफ करेगा मैं नहीं माफ करूंगा। हमने ये चीजें छोड़ दी है, हमें याद ही नहीं है। अगर आपने माँ बाप से खिलवाड़ किया है, ये जो हमारे सादिक साहब हैं, सादिक खान साहब, जहां आपकी बीवी है वहां आपके माँ बाप भी हैं। माँ बाप के भी हुकूक बराबर हैं और अपनी बीवी, अपनी घरवाली के भी हुकूक नजरअंदाज किसी को नहीं करना है, एक ही तरफ नहीं जाना है। दोनों जो पलड़े हैं बराबर रखने, तभी ये जिंदगी जो पटरी है सीधे रहेगी। वरना नाइंसाफी है। अगर माँ बाप के हुकूक ज़ाया किए तो अल्लाह की तरफ से पूछगाछ होगी, अगर बीवी के हुकूक ज़ाया किए तो पूछे जाओगे। और जो पूछे जाओगे तब माफ करने वाला कोई नहीं होगा। फिर वहां मत मौका है कि माफ करेगा, वहां कोई माफ करने वाला, न मां करेगी माफ, न बाप करेगा, न दुनिया का कोई। सिर्फ इख्तियार है उस शख्स को जो माफ इसी दुनिया में कर पाओ, इसी दुनिया में माफी मांगो। दूसरी आयत में रब फरमाते हैं या अय्युहन्नास, अभी था या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लेकिन दूसरी आयत में रब फरमाते या अय्युहन्नास, कायनात की सभी लोगों से, जो जिस मजहब के, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल मुस्लिमीन, वो मत रब्बुल मुस्लिमीन है, वो रब्बुल आलमीन है, वो सब उनका है, जो भी है उन सब का पालने वाला रब कौन है? अल्लाह है। अब सब लोग अल्लाह से डरो, क्योंकि ये सब को बनाने वाला कौन है? अल्लाह। मैंने आपको एक ही नफ्स से पैदा किया, आदम अला नबीना अलैहिस्सलातो, उससे उसकी घरवाली हवा अलैहि, फिर मैंने ज़ुर्रियत दुनिया में फैलाई, किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को शक्ल से सफ़ेद रंग का बनाया, किसी को काले रंग का बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को और शक्ल में पैदा किया, किसी को अमीर, किसी को गरीब, कोई मुलाजिम, कोई मजदूर। किसने बनाया? लखनऊ वाले लखनऊ में खुद अपनी चॉइस से पैदा हो गया।
अपनी चॉइस से लखनऊ वाला लखनऊ में है, दिल्ली वाला दिल्ली में अपनी चॉइस से है, कश्मीर वाला कश्मीर में अपनी चॉइस से है, कोई अपनी मर्जी से है, कोई अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं है। जो भी है अल्लाह की मर्जी है। जिसको किसी हाल में बनाया अल्लाह ने बनाया, इसी पे राजी हो जाओ, इसी पे राजी रजामंद हो जाओ। हम इस पे भी राजी। कश्मीर वाला में काश में दिल्ली का होता, दिल्ली वाला में काश में कश्मीर का होता, है ना, काश में अमीर होता, काश मेरे पास दौलत होती। सब जानने वाला अल्लाह है, किसको कैसे दिया इसी पे राजी हो जाओ। लेकिन जब ये निकाह का मामला हो, इस मामले में न दुनिया देखो, न माल देखो, न हस्ब नसब देखो, हाँ, न शक्ल सूरत देखो। अगर देखना है तो क्या देखना है? दीन देखो, बस दीन। फज़फुर बिज़ाति दीन, दीन को तरजीह दी, लड़की भी और लड़के दोनों। अगर देखना है कि क्या देखना है? इस्लाम देखना है। ये नमाज पढ़ता है कि कुरान पढ़ा है इसने, नमाज पढ़ता है, दीन का इसका फहम है दोनों की तरफ से। लेकिन ये चीज़ें नज़रअंदाज है। ये चीज़ें हैं तो ठीक हैं तो कोई बात नहीं, ये मुलाजिम होना चाहिए पहले नंबर पे, या बिजनेसमैन होना चाहिए दूसरे नंबर पे। बाकी दीन है या नहीं है मामला नहीं है। तीसरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वक़ूलू कौलन, साफ और सीधा कलाम करो, सच्चा कलाम करो। कलामों में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वादों में वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। जो वादे किए वो वादे पूरे करो। अगर आपने बोला कि ये अब हमारी बेटी है तो इसको बेटी की तरह रखना है। जैसे अपनी बेटी होती है, अपनी बेटी मतलब क्या होता है? अपनी बेटी के सारे ऐबों पे पर्दा किया जाता है, पर्दा उठाया नहीं जाता है, नहीं उठाया जाता है। अपनी बेटी के सारे ऐब इसको छुपाया जाता है, किसी को नहीं बोला जाता है। अब जब आपके घर में बहू आएगी, अगर आपने बोला ये बेटी है तो इसको बेटी की तरह रखो। जिस तरह अपनी बेटी के ऐबों पे पर्दा डालते हो, इसके ऐबों पे भी पर्दा डालो। लेकिन ये चीजें नहीं होती। ये बेटी के साथ होता है, बहू के साथ नहीं होता है। ये चीजें होती है। देखो, अगर ये बेटी है, बेटी और माँ में भी कभी कभार तू में हो जाती है ना। बेटी और माँ में भी हो जाती हैं, और बेटी और बाप में भी हो जाती है। लेकिन अच्छा इंसान वो है जो दुनिया में ये चीजें याद रखे। अगर मेरी बहू आई उसके साथ भी हो सकता है। जिस तरह आप अपनी माँ को माफ करती थी, अपनी बेटी को माफ करती थी, उसी तरह इसको भी माफ कर लो। लेकिन ये सारी चीजें हम सुनते भी हैं, पढ़ी भी हैं, लेकिन जब अमली मैदान में मामला आता है तब हम ये अपनाने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए, और जब ये याद होगी तभी ज़िंदगी कामयाब हो सकती है, जब इन उसूलों पे ज़िंदगी गुजारोगे। बाकी ये जो दुनियाई मामला है, आप कितना भी खर्च कर लो, असल सारा निर्भर लास्ट पे होता है जब ये एक दोनों के हुकूक पूरे, ये जब एक दूसरे के हुकूक पूरे करेंगे, जब ये हुकूक अदा करेंगे, जब हुकूक अदा होगी तो ये ज़िंदगी के जो इनकी पटरी है ये ठीक से चलेगी, और ये अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह इनको इस दुनिया में भी कामयाब करे और आखिरत में भी कामयाब करे। अल्लाह इनको सलामत रखे, खैर बरकत अता करे, भलाई अता करे, और इस निकाह में बरकत फरमाए, और इनको इस दुनिया में भी कामयाब करे, और इनकी ये ज़िंदगी है मोहब्बत से भर दे, और इनको अल्लाह खुशियों से भर दे इनकी सारी ज़िंदगी को। और लास्ट में हम अब इजाब कबूल करेंगे इंशाअल्लाह।